یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان کے ساتھ کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آ جاتے ہیں جن کی نہ تو وضاحت ممکن ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی عقلی توجہ پیش کی جا سکتی ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ ایک بار پیش آ چکا ہے۔ مجھے وہ ساری باتیں آج تک یاد ہیں، بالکل اس طرح جیسے کل کی بات رہی ہو، حالانکہ اب انہیں بیتے ہوئے پورے 11 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان دنوں میری عمر کوئی 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں جس شہر میں رہتا تھا وہ یو پی بھارت کے ترائی کے علاقے میں واقع تھا۔ وہاں سے کوئی 60-70 میل کے بعد سے نیپال کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ روپے ڈیہا نامی اسٹیشن کے بعد سے ٹرین کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اور نیپال کی سرحدیں شروع ہو جاتی تھیں۔ چند میل کے میدانی علاقے کے بعد چکیا نامی جنگل کا وسیع و عریض سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل شرقاً غرباً کوئی 50 میل کے احاطے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعض حصے بے حد خطرناک ہے اور گھنے درختوں کے اندر بے شمار درندے رہتے ہیں جن میں شیر اور چیتے بھی شامل ہیں۔ ڈیہا چند حصے ذرا چھترے درختوں پر مشتمل ہیں اور ان میں کچے راستے موجود ہیں۔ ان کچے راستوں کو وہاں کی زبان میں لیک کہا جاتا ہے۔ ان پر آدمیوں اور بیل گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اس جنگل کے اندر جا بجا کھلے میدان ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیاں آباد ہیں۔ ان بستیوں میں رہنے والے زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں یا پھر مویشی پالتے ہیں جنہیں وہ نیپال اور بھارت کے شہروں میں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کا سامان کرتے ہیں۔ مجھے بچپن ہی سے سیر و سیاحت کا شوق رہا ہے۔ میرے ماموں ایک گاؤں میں رہتے تھے جن کے دھان کے کھیت تھے، وہ ہمارے ہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ میں جن دنوں کا ذکر کر رہا ہوں ان دنوں وہ روپے ڈیہا آئے ہوئے تھے۔ وہیں سے انہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ اگر میں ان کے گاؤں رسول پور کی سیر کرنا چاہتا ہوں تو ان سے آ ملو۔ یہ خط مجھے بدقسمتی سے قدرے تاخیر سے ملا، لیکن ایک توقع کے سہارے میں دوسرے ہی دن کوئی 1 بجے روپے ڈیہا کے اسٹیشن پر جا اترا۔ ان کے پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرا انتظار کر کے صبح ہی گاؤں کی طرف جا چکے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے مایوس کن تھی۔ مدتوں سے میں رسول پور کی سیر کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا، لیکن اپنی تعلیمی مصروفیات کے باعث مجھے جانے کا موقع نہیں ملا تھا، اور اب ایک موقع ہاتھ لگا تو وہ یوں نکل گیا۔ میں یقیناً مایوس ہو کر واپس ہو گیا ہوتا، لیکن میرے میزبان نے مجھ سے کہا، میرا ایک آدمی اس وقت گڑی نامی گاؤں جانے والا ہے۔ یہ گاؤں رسول پور کے شمال میں کوئی 2 کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ تمہیں آدھے راستے تک یہ شخص ساتھ لے جائے گا۔ وہاں سے رسول پور صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ چلے جاؤ، شام سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ یہاں سے رسول پور کا کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کوئی 6-7 کوس ہوگا، یعنی کوئی 15 میل۔ پورے 5 گھنٹے کا سفر تھا۔ گھومنے کا شوق میرے سر میں سمایا ہوا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ ماموں بھی عموماً یہ فاصلہ پیدل ہی طے کرتے ہیں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص بھی آ گیا۔ جاہل سا دیہاتی تھا۔ اس نے سر پر پگڑ باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک موٹا سا لٹھ لیے ہوئے تھا۔ مجھے بل دے کر اوپر کی چمت اٹھا رکھی تھی جنہوں نے اس کے چہرے کو قدرے خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ میرے میزبان نے مجھے اس کے ساتھ کر دیا اور آدمی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، دیکھو چنگا، یہ عبد الرحمان صاحب کے بھانجے ہیں اور رسول پور جانا چاہتے ہیں۔ تم انہیں لیک پر چھوڑ دینا جو رسول پور جاتی ہے۔ آگے کا راستہ صاف ہے۔ اگر یہ بھٹکے نہیں تو سیدھے رسول پور پہنچ جائیں گے۔ دیہاتی نے، جس کا نام چھنگا تھا، مجھے غور سے دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، بابو جی کو میں آرام سے پہنچا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد ہم لوگ اپنے سفر پر چل دیے۔ کوئی آدھ گھنٹے تک تو ہم باغوں اور کھیتوں میں چلتے رہے۔ اس کے بعد ہمیں سامنے بے شمار درختوں کا ایک وسیع سلسلہ نظر آنے لگا۔ اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے چنگا نے کہا، بابو وہ رہا جنگل، اب ہمیں پورے 6 کوس اس کے اندر چلنا ہوگا، بستی یہاں سے ختم سمجھو۔ میں خاموشی سے اس کے ہمراہ چلتا رہا۔ سردیوں کے دن تھے، لہٰذا دھوپ کی تمازت ناگوار نہ لگ رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، اس وقت 1:30 بج رہا تھا۔ اپنے میزبان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا سفر کوئی 5 گھنٹے کا ضرور ہوگا اور شام سے پہلے پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم درختوں کے سلسلے تک جا پہنچے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔
जंगल के अंदर एक पतला सा कच्चा रास्ता दिखाई दिया, जिसमें बैलगाड़ियों के चलने के बायस दोनों सिबत में गहरे खड्डे से बने हुए थे। उस रास्ते पर धूल बेहद थी। चंद ही लम्हों में मेरे बूट खाक से अट गए। रास्ते की तवालत के पेश नज़र मैंने चंगा से बातें शुरू कर दी। हमारी बातचीत का मौजू जंगल था। मैंने उससे पूछा, जिस रास्ते पर हम लोग सफ़र कर रहे हैं ये मखदूश तो नहीं है? ना बाबू, चंगा होने से ऐसा, इधर कोई जानवर वगैरह नहीं होता। ये सारा जंगल सड़क की तरह साफ है। फिर भी आखिर जंगल है, कोई ना कोई जानवर या दरिंदा कभी ना कभी तो आ ही जाता होगा। हाँ, उसने आहिस्ता से कहा, कभी कभार बरसों में ऐसा होता है। अलबत्ता डाकुओं का डर जरूर रहता है। डाकुओं का? मैंने ताज्जुब से उसे देखा। कौन से डाकुओं का? अरे साहब, ये बड़ी खराब कौम है, उसने कहा। इक्का दुक्का आदमी को देखकर लूट लेते हैं। फिर तो हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, मैंने कदरे डर कर कहा। हो तो सकता है, उसने जैसे कुछ सोचते हुए कहा। एक बार तो मुझे भी उनसे वास्ता पड़ चुका है, उसने कहा। फिर अपने चेहरे के जख्म को छूते हुए बोला, ये देख रहे हो, ये निशान अभी तक मौजूद है। वो पूरे 1 दर्जन थे और मैं अकेला था, फिर भी चंगा को हरा नहीं पाए थे, उसने फख्र से कहा। तुम उनसे लड़े थे? मैंने उसे तारीफी नजरों से देखा। हाँ बाबू, मुझे बनोट आती है। मैं उनका घेरा तोड़कर निकल गया था, अलबत्ता मुझे चोट काफी पहुंची थी। चंद लम्हों तक मैं उसे खामोशी से देखता रहा। हम लोग चलते रहे। मुझे खामोश देखकर देहाती भी खामोश हो गया और चलता रहा। जंगल में चंद मकामात पर मवेशियों के झुंड भी नजर आए और उनके साथ उनके चरवाहे भी, जिसके बायस मेरे दिल में समा जाने वाला खौफ कदरे कम हो गया था। मैंने सोचा, ख्वामख्वाह डरने की कोई बात नहीं। डाकू यकीनन उन्हीं को गिरते होंगे जिनसे उन्हें कुछ रकम मिलने की तवक्को होती होगी। अब तक हमने अपनी मुसाफत का कोई 1/4 हिस्सा तय किया था। जंगल के इस हिस्से में धूप बहुत कम नजर आती थी। चारों जानिब ऊंचे ऊंचे पेड़ सर उठाए खड़े थे और उनके आसपास खुदरो झाड़ियां दूर तक फैली हुई थी। मैंने अपनी घड़ी देखी, दिन के 3:30 बज रहे थे। इस हिसाब से हमें चलते हुए पूरे 2.5 घंटे गुजर चुके थे। मैंने चलते चलते चंगा से पूछा, क्यों भाई, अभी गांव कितनी दूर है? बाबू, आपका गांव अब यहाँ से 5 मील रह गया है। कुछ आगे जाकर मैं दूसरी लेक पर चला जाऊंगा, अलबत्ता आप सीधे चलते जाइएगा। तकरीबन 4 बजे के करीब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से रास्ता 2 हिस्सों में बट गया था। उस मकाम पर जंगल कुछ ज्यादा ही घना था। यह भी हो सकता है कि चूंकि सर्दियों के दिन थे और शाम सर पर आ चुकी थी, लिहाजा मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। इस जगह से रसूलपुर सिर्फ 2 कोस के फासले पर है। अगर आप इस सीधी लेक पर चलते रहें तो आप घंटे 1.5 घंटे में रसूलपुर पहुंच जाएंगे। मैंने रुककर उसका जायजा लिया। दूर दूर तक वैसा ही जंगल खड़ा था। अब फजा में कीड़े और मकोड़ों की आवाजें भी कुछ कुछ गूंजने लगी थी और पूरा जंगल दिन भर की तपिश के बाद जैसे हौले हौले सुलग रहा था। पेड़ों की फंगियों पर बखारात के हल्के बादल तैरते हुए महसूस हो रहे थे। चंगा से अलग होकर जंगल में तन्हा सफर के तस्वुर से मैं परेशान हो रहा था। चंगा ने शायद मेरी कैफियत का अंदाजा लगा लिया। वो हंसा और बोला, परेशान ना हो बाबू, आगे रास्ता बिल्कुल साफ है। फिर यहाँ से गांव भी ज्यादा दूर नहीं, तुम्हें थोड़ी देर बाद ही चरवाहे भी मिल जाएंगे और तुम आराम से घर पहुंच जाओगे। अब मजबूरी थी। मैं देहाती को रुखसती सलाम करता हुआ अपनी राह लग गया, जबकि चंगा मुखालिफ सिमत की सड़क पर चल दिया। मैं जो ही सड़क पर अकेला हुआ, मैंने अपने कदम तेज कर दिए। जंगल की तन्हाई मेरे लिए ना सिर्फ नामानूस थी, बल्कि मुझे उससे खौफ भी महसूस हो रहा था। मैं मुश्किल से 15-20 मिनट ही चला होगा कि अचानक एक अजीब बात हुई। मेरे सर पर से 2 फाख्ताएं खौफजदा आवाजें पैदा करती हुई एक तरफ चली गईं। उनकी परवाज कुछ इस कदर नीची थी कि मैं भड़क कर एक जानिब हो गया और उन्हें हैरत से तकने लगा। कोई लम्हा भर बाद ही उन दोनों परिंदों ने रुख बदला, एक और चक्कर काटा और एक बार फिर वैसी ही नीची परवाज करती हुई मेरी सिमत बढ़ी। इस बार भी उनकी चोंचों से वैसी ही तेज आवाजें निकल रही थी। लम्हा भर में वो मेरे अकब में वाक़या दरख्तों के झुंड में गुम हो गई। मैंने मुड़कर उन्हें देखा, फिर हाथ झटकता हुआ चल पड़ा और तब अचानक मेरे पांव रुक गए। दाएं सिमत वाक़या झाड़ी के पीछे किसी जानवर के पैरों की चापें उभर रही थी। मैंने रुक कर देखा। सूरज की किरणें उस वक्त अपनी तपिश खो चुकी थी और जंगल के उस मकाम पर आड़ी तिरछी पड़ रही थी, जिससे बहुत ही मध्यम रोशनी पैदा हो रही थी। मुझे कुछ सही तौर पर नजर न आ सका।
सिर्फ जानवरों के पैरों की आहटें ही सुनाई दे सकी। चट 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 की आवाजें। मैं जरा सा रुका और झाड़ियों के एक शगाफ में से झांकने लगा। झाड़ियों के उधर कदरे खुला मैदान था और उसमें मुझे वो जानवर साफ नजर आ गया। उसका मुंह दूसरे सिमत था और फिर वो तकरीबन साफ नजर आने लगा था। कद में वो किसी ब्लड हाउंड कुत्ते की मानिंद रहा होगा, कदरे भूरा सा। उसकी गर्दन पर काफी लंबे बाल थे और थोतनी स्याह रंग की थी। दुम खासी घनी थी। एक ही नजर में मैं समझ गया कि वो कोई तन्हा भेड़िया है। जंगल के भेड़िए कुछ कम खतरनाक नहीं होते और किसी निहत्थे आदमी को आसानी से मार सकते हैं। अभी मैं सोचने के कुछ काबिल भी नहीं हुआ था कि मुझे उस जानवर के पीछे से एक और थोथनी बढ़ती नजर आई और फिर एक दूसरा दरिंदा तकरीबन उसी कदो कामत का निकल आया। गोया वो दो थे। हो सकता है वो नर और मादा रहे हों। मैं जल्दी से सीधा हो गया और इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक सन्नाटा था। मेरे दोनों जानिब दरख्त सर उठाए रात के मुंतजिर खड़े थे। दरख्तों की फुमियों पर नरम धूप रुखसती की तैयारी कर रही थी और पूरा जंगल जिंगरों की आवाजों से गूंज रहा था। मैंने सोचा कि मुझे फौरन किसी दरख्त पर चढ़कर पनाह ले लेनी चाहिए, लेकिन तभी मेरे जहन में एक पुराना सुना हुआ किस्सा उभर आया। ये वाकया मुझे मेरे मामू ने सुनाया था। ऐसे ही जंगलों में एक देहाती भेड़िए को देखकर दरख्त पर चढ़ गया था। जब भेड़िए की नजर उस पर पड़ी तो उसने शोर करके अपने दूसरे साथियों को भी बुला लिया। कहते हैं कि देहाती जब तक दरख्त पर रहा, भेड़िए बारी बारी पहरा देते रहे, हत्ता कि देहाती भूख और प्यास की ताप ना लाकर दरख्त से गिर गया और इस तरह उन्होंने उसका तिया पांचा कर डाला। मुझे अंदेशा था कि कहीं मेरे साथ भी यही वाकया ना दोहराया जाए, लिहाजा मैंने दरख्त पर चढ़ने का इरादा मुलतवी कर दिया और उल्टे पैरों वापस हो गया। उस वक्त तक दरिंदे की नजरें मुझ पर नहीं पड़ी थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं किसी महफूज जगह जा छुपूंगा। तब तक ये जानवर किसी और तरफ निकल जाएंगे। मुझे रह रहकर अपने मेजबान पर भी गुस्सा आ रहा था कि ख्वामख्वाह उसने मुझे तन्हा रवाना कर दिया। चंगा का ये कहना गलत था कि रास्ता साफ है। मैं मुश्किल से आधा फरलांग चला हूंगा कि मुझे अपने पीछे तेज तेज भागते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। यकीनन उन भेड़ियों ने मुझे देख लिया था। मैंने मुड़कर देखने की जहमत गवारा नहीं की, बल्कि दौड़ने लगा। फिर मैं वहां से हटकर दरख्तों में घुस गया और बेतहाशा दौड़ने लगा। कदमों की आवाजें बदस्तूर मेरे पीछे उठी और लम्हा बलम्हा करीब तर हो रही थी। उस घड़ी मेरी जो हालत थी वो कुछ मैं ही जानता हूँ, और फिर खुदा ने मेरी सुन ली। मुझे दरख्तों के दरमियान कोई 100 गज के फासले पर एक मकान के आसार दिखाई दिए। मकान के इर्द गिर्द लकड़ी का एक बहुत बड़ा अहाता सा था। मेरा ख्याल था जरूर उसमें कोई ना कोई रहता होगा। मैंने सुन रखा था कि जंगल में अक्सर साधु वगैरह इस तरह के मकानों में रहते हैं। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। एक जगह मैंने जरा रुककर सुना। मेरे पीछे से आने वाली आवाजें मादूम होती चली गई थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और मेरा खून जम कर रह गया। वो दोनों दरिंदे मुझसे कोई 100 गज के फासले पर दरख्तों के दरमियान खड़े थे। उनकी जुबानें बाहर निकली हुई थी और उनकी आंखों में भूख रक्स कर रही थी। उनका इस तरह दूर रुक जाना मेरे लिए हैरत की बात थी, लेकिन मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और दौड़कर सामने वाले मकान के उस फाटक को खोलने लगा, जो मकान के इर्द गिर्द खींचे हुए लकड़ी के कटहरे में लगा हुआ था। मैंने उसको जोर लगाकर खिसकाया तो वो खुल गया। अंदर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया और रुककर सामने देखा। कटहरे से कोई 10 गज के फासले पर इमारत थी। उसमें कदीम वजह की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। छत लकड़ी की थी। वो बाहर से एक पुराना शिकस्ता मकान ही नजर आता था। सदर दरवाजा बंद था और उस तक पहुंचने के लिए मुझे 5 अदद सीढ़ियां तय करनी पड़ी। मैंने सीढ़ियां चढ़ी और फिर एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा। इस बुलंदी से मुझे वो हिस्सा साफ नजर आ रहा था जहां भेड़िए खड़े थे। वो दोनों अभी तक वहीं खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी 1 इंच भी जुम्बिश नहीं की थी। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और तभी मैं घबराकर एक कदम पीछे हट गया। दरवाजा कुछ इस तरह अचानक खोला गया था। फिर जो आदमी मेरे सामने आया वो भी खासा अजीब था। उस जैसा शानदार शख्स मेरी नजरों से कम ही गुजरा होगा। उसके जिस्म पर एक कदीम वजह की मर्जई थी। गले में मोतियों की चंद मालाएं पड़ी हुई थी। उसने पैर में सलीम शाही जूते पहन रखे थे। उसका रंग सुर्खो सफेद था और उसने काकलें यानी कि अपनी लटें बढ़ा रखी थी। उसके वजीह चेहरे पर पतली पतली मूछें थी।
चेहरे के नकूश तीखे थे और आंखों में चमक पिनहा थी। मुझे देखकर उसने आहिस्ता से कहा, खुश आमदीद मेहमान अजीज, खुश आमदीद। फिर इस अंदाज में हाथ हिलाए जैसे वो मुझे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। मैं जल्दी से अंदर चला गया। मेरे मेजबान ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर खासी तारीकी थी। मैं जहां खड़ा था वो कोई हाल रहा होगा। कमरे की उस मलगची तारीकी में मैंने देखा कि हाल से मुल्क एक और कमरा है जिसके रोशनदान से रोशनी छन रही थी। मेरा मेजबान मेरे आगे चलता हुआ उसी हाल दरवाजे में दाखिल हो गया। वहां रुककर उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं किसी मूर्ति की मानिंद उसके हुक्म की पैरवी करता हुआ चल पड़ा। उस कमरे में काफी रोशनी थी जो छत में टंगे हुए फानूस से खारिज हो रही थी। कमरा खासा कुशादा था। एक जानिब बड़ा सा तख्त पड़ा हुआ था जिस पर गाव तकिया वगैरह रखा था। दूसरे गोशे में एक बड़ी सी मेज मौजूद थी जिस पर फूलों का एक गुलदस्ता रखा हुआ था। दीवारों पर कदीम वज़ा के हथियार बड़ी खूबसूरती से आवेज़ा थे। दीवारों पर कदीम वज़ा के हथियार बड़ी खूबसूरती से आवेज़ा थे। उनमें कुछ तोड़ेदार बंदूकें, कुछ बेशकीमत खंजर और ढालें शामिल थीं। पूरा कमरा एक मखसूस किस्म की खुशबू से बसा हुआ था। ये गालिबन उदिया अंबर की खुशबू थी। मैं एक अजीब सा अलफ लैलवी माहौल महसूस कर रहा था। एक जंगल में जहां मीलों कोई आबादी न थी। मकान की मौजूदगी खासी अजीब थी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरा मेजबान मुझे मौका ही नहीं दे रहा था। तख्त पर बैठने का इशारा करते हुए मेरे नौजवान मेजबान ने कहा, तशरीफ रखिए। अच्छा हुआ कि आप इधर आ गए, वरना भेड़िए खतरनाक साबित हो सकते थे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने शायद मेरे दिल की बात समझ ली और बोला, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। मैंने दरवाजा खोलते वक्त उन दोनों को देख लिया था। मैं अभी तक तजब्जुब में खड़ा था। उसने एक बार फिर मुझे बैठने का इशारा किया और बोला, बैठ जाइए, आप थके हुए हैं। मैं पानी का इंतजाम करता हूं ताकि आप हाथ मुंह धो सकें। फिर वो जल्दी से कमरे के बगली दरवाजे में गायब हो गया। मैं तख्त पर एक जानिब टिक कर इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त मुझे बगली कमरे से अपने मेजबान की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, सुमला जाओ, मेहमान को बुला लो। पानी मैंने रख दिया है। मैं एकदम चौकस होकर बैठ गया। ये एक और हैरतनाक अमर था। यहाँ एक औरत भी मौजूद थी। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। दरवाजा खुला और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कोई लड़की तो नहीं थी, यकीनन चांद का टुकड़ा थी जो जमीन पर उतर आया था। सरुकद, मुतनासिब जिस्म, सुर्ख व सफेद रंग और कमर तक पहुंचती हुई जुल्फें। मैं शायर नहीं वरना कुछ और भी उसके सरापे का जिक्र यूं करता। यूं लगता था कि जैसे चुगताई आर्ट का कोई हसीन तरीन नमूना सामने हो। उसके बदन पर सफेद लिबास था, चुस्त चूड़ीदार पाजामा, लंबी सी कमीज और उसके साथ स्याह रंग का दुपट्टा जिसमें सितारे टके हुए थे। अंदर तशरीफ ले आए और हाथ मुंह धो लें। एक नगमा सा हवाओं में उभरा और मेरी समात में रस घुल गया। मैं गड़बड़ा कर उठ बैठा। कुछ कहना चाहा लेकिन आवाज नहीं निकल सकी। बस खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। दरवाजे के उधर एक और कमरा मौजूद था जिसका एक दरवाजा जंगल की सिमत में खुलता था। वहीं मेरा नौजवान मेजबान खड़ा था। उसने मुझे देखकर पानी के लोटे की सिमत मतवज्जो किया और बोला, हाथ धो डालें, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। तब पहली बार मैंने कहा, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। मैंने मजीद कुछ कहना चाहा लेकिन कुछ कह ना सका। फिर मैं खामोशी से मुंह हाथ धोने लगा। इससे फारिग होकर मुझे एक और कमरे में ले गया जहां एक बड़ी सी मेज के गिर्द कुर्सियां बिछी हुई थी और मेज पर अनवाउ इकसाम के फल सजे हुए थे। मुझे कुर्सी पर बिठाकर वो दोनों मेरे सामने बैठ गए। फिर मेरे मेजबान ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम ज़ीशान है और ये मेरी बहन सुंबला। हम लोग अरसे से यहाँ रह रहे हैं। आप शायद मुताज्जिब हों लेकिन ताज्जुब की कोई बात नहीं। हम दोनों ही तन्हाई पसंद हैं और यहाँ जो तन्हाई मौजूद है वो और कहाँ मिल सकती है। मैंने उस लम्हे खामोश रहना मुनासिब नहीं समझा और कहा, मुझे सिद्दीकी कहते हैं। मैं रसूलपुर जा रहा था। रास्ते में ये भेड़िए नजर आ गए। मैंने तो सुना था ये रास्ता बिल्कुल साफ है लेकिन नहीं, ये बात नहीं। ये रास्ता तो बिल्कुल साफ है। चंद रोज हुए ये जानवर इधर आ गए। ख्याल है कि या तो जल्द गांव वाले इन्हें भगा देंगे या इनको खत्म कर देंगे। पिछले 2 दिनों में इन्होंने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है और गांव की एक जमात इनके पीछे है। रुककर उसने मुझे देखा और बोला, अरे आप यूं ही क्यों बैठे हैं, कुछ खाइए। फिर उसने बढ़कर मेरी प्लेट में कई फल रख दिए और बोला, अफसोस है कि हम आपकी कुछ और खिदमत नहीं कर सकते लेकिन रात में सुंबला आपकी अच्छी सी दावत जरूर करेगी। ओहो, इसकी जरूरत नहीं, मैंने जल्दी से कहा। आप जहमत ना करें। मेरे ख्याल में रसूलपुर यहाँ से करीब ही है और मैं रात होने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा। जी नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जल्दी से बोला,
आप रात में नहीं जाएंगे, अलबत्ता कल सुबह चले जाइएगा। रात को ये रास्ता खतरनाक भी हो सकता है, फिर आप तन्हा भी हैं और निहत्थे भी। उसकी बात माकूल थी, मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। नाश्ते के दौरान सुमना भी खामोश रही। वो कभी कभी कनखियों से मेरी जानिब देखती जा रही थी। मैंने ये बात इसलिए नोट की कि मैं वक्तन फवक्तन उसे देख रहा था। उसकी मनमोहनी सूरत गोया मेरी आंखों में खुप गई थी और मैं अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत का ज्वालामुखी फूटता महसूस कर रहा था। नाश्ते से फारिग होकर मेरी मेजबान ने अपनी बहन से कहा, तुम मेरे दोस्त के लिए खाना तैयार करो, जब तक मैं इन्हें अपना कुतुब खाना दिखाता हूँ। उसकी लाइब्रेरी गो के छोटी थी, लेकिन उसमें काफी किताबें मौजूद थी। मैंने उनमें से चंद किताबें निकाल कर देखी। वो सब की सब खासी कदीम थी और उनका कागज भी खासा बोसीदा लगता था। एक भी ऐसी किताब नजर न आई जो नई कही जा सकती हो। मैंने तबसरा करते हुए कहा, आपने कदीम किताबों का बड़ा जखीरा जमा कर लिया है, अलबत्ता नई किताबें नहीं हैं। जवाब में मेरा मेजबान मुस्कुराया और बोला, हम माजी के लोग हैं और इसीलिए हमें पुरानी किताबें पसंद हैं। बहुत ही अजीब सा जवाब था। मैं चुप रहा। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। खिड़की से बाहर जंगल साफ नजर आ रहा था, बिल्कुल तारीक। पूरी फिजा में कीड़े मकोड़ों की बोलने की आवाजों के सिवा कुछ और नहीं था। मैं वहां देर तक बैठा रहा। हमारे दरमियान कोई 7-8 बजे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। इस दौरान नौजवान ने अपने बारे में कुछ ज्यादा गुफ्तगू न की, बस इधर उधर की गुफ्तगू करता रहा। कोई 8 बजे लाइब्रेरी में सुमला वारिद हुई। उसकी मुतरन्नम आवाज एक बार फिर मेरे कानों से टकराई, चलिए जनाब, खाना तैयार है। नौजवान फौरन ही कुर्सी से उठ गया। उसने बड़ी मोहब्बत से मुझे उठाया और हाथ में हाथ डाले हुए खाने के कमरे में ले आया। कमरे में भुने हुए गोश्त की इश्तहा अंगेज खुशबू फैल रही थी। मैं काफी पैदल चला था और मुझे सख्त भूख लग रही थी। कुछ रस्मी बातों के बाद हम खाने में मुनहमिक हो गए। खाने के बाद सुंबला ने कहवा पेश किया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो खाना मैंने वहां खाया वैसा फिर कभी मुयस्सर ना हो सका। मेरी भूख खुली हुई थी, कुछ ज्यादा ही खा गया, फिर भी पेट खाली खाली ही लगता रहा। हत्ता कि जब मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने बिस्तर पेश किया तब भी मुझे शदीद भूख महसूस हो रही थी। मैंने अमदन ज्यादा नहीं खाया कि मुबादा मेजबान मुझे पेटू न समझे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। जब भी आंख खुलती यूं लगता है जैसे सुंबला मेरे पास आई हो और मेरे बालों में उंगलियां फेर रही हो, और फिर मेरी नींद उचट जाती। कई बार आंख खुलने पर जी चाहा कि उठूं और देखूं कि वो कहाँ है, लेकिन मेरे चारों तरफ गहरा अंधेरा तारी था। वही जंगल की आवाजें थी और बस। मैं मुंह अंधेरे ही उठ बैठा और मुंह हाथ धोने के लिए मखसूस कमरे में चला गया। उससे मुल्हिक कमरे में मुझे रोशनी सी महसूस हुई। साथ ही बर्तनों के खटकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। यकीनन वो सुमला ही होगी। और फिर मुझे उसका हेवला दरवाजे में खड़ा नजर आया। ओह, आप इतनी जल्दी बेदार हो गए? उसने पूछा, जैसे जल तरंग बोल उठे हो। हाँ, बस उठ गए, मैंने थके हुए लहजे में कहा। मालूम होता है कि आप रात में अच्छी तरह सो नहीं सके। उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। क्यों? उसने ताज्जुब से मुझे देखा। बस क्या बताऊं। एक ठंडी सांस मेरे मुंह से निकली और मेरी नजरें उसकी आंखों में बेबस हो गईं। मेरी नजरें अपने चेहरे पर जमी देखकर उसके सुर्खों सफेद चेहरे पर शर्म का गाजा सा छा गया। उसकी नजरें हया से झुक गई। मैं अभी चंद लम्हों में रुखसत हो जाऊंगा। न जाने क्यों मैंने कह दिया। मेरे लहजे में बला की उदासी ऊद कर आई थी। हाँ, आपको जाना तो है, हमारे पास तो नहीं रह सकते, उसने जवाब दिया। अजीब खोखली सी आवाज थी। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और मेजबान ज़िशान अंदर आ गया। उसने सुमला से मुखातिब होते हुए कहा, अरे भाई, नाश्ता लगा दो, मेरे दोस्त को अपने घर भी जाना है। सुमला उल्टे पैरों रुखसत हो गई। चंद लम्हों में हम लोग नाश्ता कर रहे थे। ये नाश्ता पूरियों और कबाबों पर मुश्तमिल था। नाश्ते से फारिग होते हुए कोई 7 बज गए थे। सूरज की शुआएं जंगल को मुनव्वर करने लगी थी। मैंने अपना लिबास दुरुस्त किया, सफरी थैला संभाला और कहा, जनाबे मन, अब मैं चलूंगा। आपने मेरे साथ जिस मोहब्बत का मुजाहरा किया है मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। जवाब में मेरी मेजबान ने मुस्कुराकर देखा, फिर अपनी बहन की तरफ मुड़ते हुए बोला, सुमला, कुछ पूरियां और कबाब इनके साथ कर दो। खाने की मेज पर ये उनकी काफी तारीफ कर रहे थे। दोपहर के खाने में खा लेंगे। ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने जल्दी से कहा। आप लोगों की याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। वैसे भी आप रसूलपुर के करीब ही रह रहे हैं। मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगा। मैंने एक उचकती सी नजर सुमला पर डालते हुए कहा, तब शायद मैं आपको कोई खूबसूरत तोहफा भी दे सकूं। सुमला ने आंखें झुका ली। यकायक जैसे वो चौंक सी गई। जल्द ही उसने चंद पूरियां और कुछ कबाब निकाले और मेरे सामने एक रंगीन से कागज में उन्हें बांध दिया।
फिर उसे मेरी से मत बढ़ाते हुए बोली, ये रख लीजिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तकल्लुफ बरता। मेरी खुशी के लिए रख लीजिए, उसने दोबारा कहा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। मैंने अपनी उंगलियां अमदन उसके हाथ से टकरा दी। मुझे यूं लगा जैसे बर्फ के साथ मेरा हाथ मस हो गया हो। कुछ ऐसी ही सर्द थी वो उंगलियां। जब मैं मकान से बाहर निकला तो वो दोनों बहन भाई कुछ दूर तक मुझे छोड़ने भी आए और फिर अलविदाई निगाह डालने के बाद मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा। उस वक्त तक धूप हर तरफ फैल चुकी थी। जंगल में जिंदगी ऊट कर आई थी। चिड़ियां इधर उधर उड़ रही थी। मैंने कुछ फासले पर रुककर पीछे देखा। वो दोनों अब वहां मौजूद नहीं थे। अलबत्ता दो फाख्ताएं काफी नीची परवाज करती हुई मेरी तरफ चली आ रही थी। जब वो मेरे सर के ऊपर से गुजरी तो उन्होंने मुंह से कुछ आवाजें निकाली और उड़ती हुई दरख्तों के दरमियान गुम हो गई। मैं उदास और बोझल कदमों से चलता रहा। रसूलपुर आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। गांव से कोई आध मील के फासले पर जंगल खत्म हो जाता था और मैदान में दूर से गांव नजर आता था। मुझे बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ अपनी तरफ आता नजर आया। उसके पीछे एक उधेड़ उम्र चरवाही को देखा जो लाठी हिलाता चला आ रहा था। जब वो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने उसे रोक लिया और पूछा, मियाँ जी जरा ये तो बताओ, उधर कोई मील परे जंगल में जो घर बना हुआ है उसमें कौन रहता है? चरवाही ने माथे पर शिकने डालकर पूछा, कौन सा घर भाई? वही जिसके इर्द गिर्द लकड़ी का जंगला लगा है। अच्छा अच्छा, वो शाही गढ़ी। चरवाही ने कहा, उसमें कौन रहेगा भाई? वो तो बिल्कुल टूटा हुआ छोटा सा पुराना मकान है, बरसों पुराना। नहीं मियाँ, वो इतना टूटा फूटा भी नहीं। आपने अंदर से नहीं देखा बाबू, वो तो खंडर है, खंडर। खंडर है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ जी, खंडर ही तो है। ये घड़ी बरसों पुरानी है। मैंने जब से होश संभाला है उसे वैसे ही पाया है। मेरे दादा कहते थे कि एक बार बड़ी गदर हुई। गोरे लोगों और बादशाह से जंग हुई थी। तब गोरों ने हजारों आदमी मार दिए थे और बहुत से शहजादे इधर उधर भाग गए थे। कहते हैं कि उनमें से दो भाई बहन इधर गए थे और इस जंगल में छुप गए थे। ये घर उन्होंने बनाया था। उसके बाद उनमें से कोई नहीं रहा। उसे यहाँ शाही गढ़ी कहते हैं। यहाँ तो दिन रात अब उल्लू बोलते हैं और बस। मैं तो कई बार अंदर गया हूँ बाबूजी।